Hello, good morning, students. I hope you all are fine and safe at home. Okay, students. So, as you can see, students, we have to start a new chapter. Okay, we are done with the chapter birds. I hope you have read the chapter thoroughly, 3-4 times at least. राइट यस बहुत अच्छे से रीडिंग करना है बेटा आपने बर्ड्स चैप्टर का ठीक है because it's a very easy simple concepts it simply needs a thorough reading of all the concepts but students today we have to start chapter 8 states of matter. Okay, this is still the planning of May month. Okay. um, so beta before I start with the chapter, first of all I want to ask a question from you. As students, we have done the chapter living and non-living things. Okay, in that chapter also we have read why a thing is living, why a thing is non-living. Okay, because of some features, है ना? We have done the differences. You will say, ma'am, living things can move, but non-living things cannot move. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली आज हम यही स्टडी कर रहे हैं बेटा. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. Yes, students, as you can see that on the first page of this chapter, they are simply asking circle the natural things with a red pen and the human made things with a blue pen. Okay, अब ये कंसेप्ट आपने स्टडी किए हैं. ह्यूमन नेचुरल थिंग्स क्या होती हैं और ह्यूमन मेड थिंग्स क्या होती हैं. ठीक है, आपने स्टडी किया है बहुत अच्छे से. यस, नेचुरल थिंग्स आर दोज थिंग्स बेटा विच आर गिवन टू अस बाय गॉड. हमें गॉड ने दिए हैं. ठीक है, नेचुरल थिंग्स बिकॉज नेचर वर्ड इज देयर in this word natural, right? And human made things which are made by man, so we can easily identify them, right? Ki what are made by God and what are made by us human beings. Chalo, let's revise quickly. Like we know, a book is always written by a man or a woman. We call them author, है ना, और writer बोलते हैं. This is a sun is you have to circle the natural things with a blue pen. ठीक है, चलो आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना. नाउ दिस इज अ सन इज अ नेचुरल थिंग बिकॉज इट इज़ क्रिएटेड बाय गॉड, सो वी विल सर्कल इट. आप सर्कल कर लेना. चेयर Chair is a man-made thing. You will simply tick it. Birds, they all are living creatures. They are made by God. तो ये नेचुरल थिंग्स हैं. मैं इसके नंबर को ही सर्कल कर देती हूँ. ठीक है, इन प्लेस ऑफ डूइंग द कंप्लीट बर्ड. नाउ द नेक्स्ट इज बेटा पेंसिल. पेंसिल तो एक ह्यूमन बींग ने बनाई है, सो वी शुड टिक इट. ओके, फैन ऑल्सो इट इज़ अ क्रिएशन ऑफ अ ह्यूमन बींग. लीव्स, अब लीव्स क्या है? लीव्स को तो प्लांट्स को तो गॉड ने बनाया है ना. यस, सो वी कैन सर्कल दिस. एंड दिस इज अ वुडन पीस इज ऑल्सो. यस, यू कैन. वुड इज ऑल्सो फाइंड इन द नेचर, तो दिस इज अ नेचुरल थिंग्स. आप इसको सर्कल कर सकते हैं. ठीक है बेटा, चलो. सो दिस इज हाउ वी नो व्हाट आर नेचुरल थिंग्स, व्हाट आर ह्यूमन मेड थिंग्स, राइट? तो बेस थोड़ा सा थॉरेटिकल है. वी शुड रीड इट ऑल टुगेदर. ओके, when we look around we see so many different things. Okay, some are natural, some are human made. Okay beta, like I am also reading, you should also read with me. You should keep a book with you and you can also underline that important points that I am underlining. Okay, so more understanding, for you should keep a pencil or a science book with you. Right, students? Yes, very good. So, students, the things that are found in the nature, they are known as natural things. Okay, and examples are sun, moon, bird, animal, plant, rock. अभी हमने स्टडी किया ना, that are found in the nature, they are called natural things. Right? Things that are made by humans, जो human ने बनाया उनको बोलते हैं human made, और उनको मैन मेड भी बोल देते हैं. ठीक है, लाइक एग्जाम्पल्स, बुक इज़ रिटन बाय मैन, पेंसिल, चेयर, टेबल, फैन, बैग. नेचुरल थिंग्स मे बी लिविंग और नॉन लिविंग, ये भी आपको समझाया था ना बेटा आपको.
like natural things may be living or non-living. Now what is the meaning? Like natural things में रिवर आती है ना, बट रिवर तो एक नॉन लिविंग थिंग्स है, वो अपने आप मूव तो नहीं करती ना, राइट, यस। और नेचुरल थिंग्स में प्लांट्स होते हैं, उनको हम लिविंग बोलते हैं बिकॉज दे हैव ऑल द फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। तो यहाँ पे अगर हम नेचुरल थिंग्स में अगर हम प्लांट्स और रिवर को कंपेयर करें तो रिवर जो है वो तो नॉन लिविंग है, बट नेचुरल थिंग्स, एंड प्लांट्स लिविंग हैं बट दे आर ऑल्सो नेचुरल थिंग्स, राइट स्टूडेंट्स, yes. Now in the next line they are explaining all the things living and non-living. Natural, man-made have different sizes, shapes and colors. Yes, we know that, as at our home only there are so many things around us. Some are different in colors, some are different in sizes, some are different in shapes also, but there is a one feature is common among all. What is that? All have mass and occupy space. Now this is a new word for you, mass. आप बोलोगे मैम मास का क्या मीनिंग है? ऑक्यूपाई स्पेस तो इजी टर्म है, आई कैन एक्सप्लेन यू, बट मास बेटा इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है बेटा। बेटा मास का मीनिंग होता है लाइक वेट, like you know that everything has some weight. Some things we feel ma'am it is very very light to carry, but some things are very very heavy. उनको कैरी करना बहुत टफ होता है just because of their weight. Okay, like if you are carrying your bag daily, है ना, like you are coming to school daily with a bag, but instead of that if you are asked to carry a sack, okay, a sack of bricks if say, so you will say ma'am it is so heavy we can't carry it because the weight of that sack will be heavy. तो बेटा वेट का मीनिंग होता है, वेट मीनिंग इज वेट, मास मीनिंग इज वेट, और आपके थर्ड लेवल के लिए मैं आपको यही मीनिंग बता रही हूँ, बट व्हेन यू विल गो टू द हायर लेवल द मीनिंग्स विल चेंज विद टर्म्स ऑफ साइंस. अब मास का ये भी मीनिंग होता है द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस दैट मेक्स अप एन ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जिसमें सब्सटेंसेस होते हैं, उसके अमाउंट को हम बोलते हैं, उस अमाउंट को बोला जाता है मास. बट फॉर यू आप एक टर्म इजीली समझ सकते हो, वेट, ठीक है. लाइक आपने मैथ्स में स्टडी किया है ना, द मेजरमेंट ऑफ स्मॉल थिंग्स आर इज़ मेजर्ड इन ग्राम्स, और जो हेवी थिंग्स होती हैं उसको किस में मेजर करते हैं, केजी में मेजर करते हैं, ठीक है. और स्पेस का मतलब तो यही होता है, हर चीज़ में स्पेस होता है, राइट, यस, ठीक है. लाइक आई एम गोइंग टू शो यू पिक्चर, with that you can also easily understand. As you can see in the picture beta, there is a bag, it has books, your stationery items. This is a water bottle, in this there is a water, and this is a pot. अब ये pot में क्या होता है, sand is there, है ना, proper soil is there, only then the plants grow. So beta anything that has mass and occupy space is called matter. तो यहाँ पे आपको ये मीनिंग बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि मैटर क्या होता है. एनीथिंग दैट हैज़ मास, दैट हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस, यानी कि कोई भी चीज़ जिसमें स्पेस होता है, लाइक यू कैन हैव अ ज्योमेट्री बॉक्स, you have a space in that is why you are able to keep your pencils, sharpener, erasers in that. In the same way there is a water bottle, इसमें भी कुछ space है, कुछ weight है, that is why you are able to keep water inside it. And this is a pot, अब ये pot है, इसमें भी space है, that is why we are able to pour soil and water into that, and only then plants are growing, right. यस, सो ये डिफ़ाइन है, बहुत इम्पॉर्टेंट डिफ़ाइन है, मैटर. मैटर मीन्स एनीथिंग. अब एनीथिंग मतलब कैटेगरी अभी हम स्टडी करेंगे,
but for the definition, anything that has mass and occupies space is called matter, right? So students, now in this chapter we are going to study about states of matter. That means if we are saying matter is anything, then we should know that. So whatever number of things we have around us, they are divided into three main categories. Solid, what are they? They are solid, liquid, गैस. ठीक है बेटा, लाइक आपने नॉन लिविंग और लिविंग में पढ़ा था, एंड इन दीज टू कैटेगरीज है ना, वी हैव इंक्लूडेड ऑल द थिंग्स अराउंड अस इन द सेम वे. In the same way, students, we have now categorized all the things around us in three categories. What are they? Speak with me. Solid, liquid, gas. Okay, now we are going to study about, like, ma'am, why we are calling this thing solid, why we are calling this as liquid, why we are calling this thing as gas. Some of the properties you will understand, but it needs a thorough understanding. Okay? As you can see these things in front of you, okay, there is a bag, there is a bag, there are books, okay, so many things you can see. Okay, now I am calling them solids. Now, of course, you must be wondering why ma'am is saying these are solids. Yes, I have a reason. And of course, after studying, you will also say, ma'am, this is a solid. This thing is a solid. Okay. So let's understand together. Okay, students? Yes. So, students, as you can see that in this, yes. As you can see that there are some examples I have taken. Okay. Like computer, car, carrot, cup and book. These are called solids. Now why? There are some properties. अब ये प्रॉपर्टीज़ आपने बहुत अच्छे से समझनी है, ठीक है. लाइक फर्स्ट वन इज़ डेफिनेट शेप. यानी कि अगर किसी भी चीज़ में, किसी भी थिंग में ये सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी ना, एंड इफ़ यू विल से मैम वी आर एग्री विद दीज प्रॉपर्टीज़, देन यू विल डेफिनेटली से मैम ये तो सॉलिड है. ठीक है, चलो स्टडी करते हैं. नंबर वन बेटा, दैट इज़ अ डेफिनेट शेप. As you can see that all the pictures, computer, cup, carrot, book, इन सब की एक डेफिनेट शेप होती है. डेफिनेट के प्लेस पे बेटा आप एक और वर्ड यूज़ कर सकते हो. जैसे कई बच्चे क्या करेंगे, पक्का डेफिनेट के स्पेलिंग एरर करेंगे. उसके लिए आप एक वर्ड यूज़ कर सकते हो, फिक्स्ड. फिक्स्ड का मतलब होता है दैट डजंट चेंज. ओके, दैट डजंट चेंज. ओके, सो जितने भी सॉलिड्स होते हैं दे हैव फिक्स्ड शेप. यानी कि फिक्स्ड शेप होती है. ऐसा नहीं कि उनको प्रेस करने से, स्क्वीज़ करने से उनकी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी. लाइक आपके हैंड्स में कैरेट है, आप उसको प्रेस करोगे, क्या उसकी शेप चेंज होती है? नो. व्हेन योर मम्मा एक्चुअली कट द कैरेट, ओनली देन it is cut into the pieces. Like if you have a cup with you, you are drinking milk, so will you be able to change its shape if you will press it? No, you will say ma'am ये तो freeze है, ये तो fixed shape का है, right? In the same way you can do with the book also. You can carry a book with you, and if you will press it, you will squeeze it, दबाओगे, आपको लगेगा मैम nothing is happening, the book shape is remaining the same like as usual. Okay, so this is the first point, कि anything that doesn't change its shape while pressing, while moving, while whatever it is, ठीक है, it doesn't change its shape. Next is definite volume. yes बेटा, definite volume का meaning क्या होता है? Definite volume means fixed volume. Now what is the meaning of this volume? Like see, I am taking the example of beta, this example is not here. Okay, कार का example लेते हैं. Like your father has a car, and your father has observed in his car only 5 persons can sit at one time. Okay,
मतलब आपको आपके पापा को पता है कि योर हिज कार हैज़ द कैपेसिटी ऑफ कैरिंग ओनली 5 people एट वन टाइम. Okay, so you tell me, will you be able to will you be able to keep will you be able to tell 10 people to sit in the car? No, you will simply say, my father car can carry only 5 people because it doesn't have more space. आप सिंपली बोलोगे मेरे पापा की कार में 5 people आ सकते हैं, नॉट मोर देन दिस, बिकॉज इट्स की जो वॉल्यूम है वो फिक्स है. अब ऐसा तो नहीं है आप कार को प्रेस करोगे या आप कार को ऐसे स्क्वीज़ करोगे तो कार का साइज़ बड़ा हो जाएगा. नहीं, आपको पता है अगर 5 person आते हैं तो 5 person आते हैं, यानी कि जो उसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम का मतलब होता है स्पेस. ठीक है, स्पेस जो होता है वो फिक्स होता है. जैसे कप है, कप में मम्मा डेली आपको 500 ml मिल्क पोर कर रही है. अब ऐसा तो नहीं है नेक्स्ट डे विल शी बी एबल टू पोर 1 liter मिल्क. नो, डेली शी विल बी एबल टू पोर 500 ml मिल्क ओनली इन दैट कप बिकॉज शी नोज़ कि इस कप में इतना ही मिल्क आता है. तो डेली रूटीन में आपकी मम्मा वही कप फॉलो करती है, राइट. वो डेली इतना ही पोर करती है मिल्क कि मेरे बच्चे को आज इतना मिल्क पीना है, तो डेली वो वही कप यूज़ करती हैं बिकॉज योर मम्मा नो कि दिस कप कैन कैरी 500 ml मिल्क, राइट. चलो, नाउ द नेक्स्ट इज़ दे आर हार्ड. अब ये जो सॉलिड्स होते हैं ना ये हार्ड होते हैं. हार्ड का मतलब इनकी शेप चेंज नहीं होती, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया. ठीक है, दे डजंट चेंज इट्स शेप. यस, ओके. तो एंड नेक्स्ट इज दे डू नॉट चेंज देयर शेप व्हेन मूव्ड टू अनदर कंटेनर. दैट मीन्स अगर कंटेनर की बात ना करें, अगर आपके पास बुक है, आप उसको वन रूम से सेकेंड रूम में अगर आप रखते हो, will the book change its shape? No. If your father park his car at one place at one time and at the very next day if he will park at another place, will the car change its shape? No, definitely no. तो बेटा ये प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है. फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब होता है स्पेस. ठीक है, एंड दे आर हार्ड. यस, एक और एग्जांपल वॉल्यूम का मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ बेटा. लाइक आपको पता है कि आपकी बुक, आपके बैग में 10 नोटबुक्स आती हैं. ठीक है, एंड योर टीचर इज़ सेइंग बेटा यू हैव टू ब्रिंग 20 नोटबुक्स इन दिस बैग टुमारो. अब of course you will think and you will answer, you should answer to the teacher, ma'am in my bag only 10 notebooks can come because it has fixed volume, it has fixed space. ऐसा तो नहीं है आपका बैग बड़ा हो जाएगा या आप उसको स्ट्रेच करोगे कि आपका बैग बड़ा हो जाएगा. नो, ओके. तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको बहुत अच्छे से करनी है बेटा. नाउ नेक्स्ट अब हम स्टडी करते हैं लिक्विड्स के बारे में. अब लिक्विड्स तो सबको पता है, दीज डेज यू ऑल आर ड्रिंकिंग मैंगो शेक, बनाना शेक, ऑफ कोर्स यू आर ड्रिंकिंग मोर वाटर ऑल्सो बिकॉज ऑफ समर सीजन, राइट. यस, अब लिक्विड्स तो सबको पता है. लिक्विड फॉर्म में क्या होता है, जूस होता है, मिल्क होता है, वाटर होता है. यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि मैम दिस इज़ लिक्विड, राइट. यस. अब now there are some properties of liquids also and they are very easy to understand. Like see the examples, juice, see the examples like juice, water, oil, milk, soft drink, vinegar. Vinegar बेटा वो होता है like your mama use for making chowmins and chili potato for you, right? Yes, you can ask from your mama too. ओके, यस बेटा, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड्स. अब लिक्विड्स के देखो एक बार प्रॉपर्टीज़, यानी कि अगर ये जो पॉइंट्स हैं अगर इसमें येस आ रही है दैट मीन्स इनको लिक्विड बोलते हैं. ठीक है, तो आपको ये लर्न भी रखना है. येस, लिक्विड्स हैव नो शेप. येस, वी नो दैट. ओके, इफ़ वी हैव वाटर इन अ गिलास, ठीक है, इफ़ वी विल पोर द सेम वाटर इन अ bowl, then you will say yes mama, now the water which was in the glass, now it has taken the shape of a bowl. Yes, because जो liquids होते हैं उनका fixed shape नहीं होता. In fact they take the shape of the container in which they are kept.
वो उस कंटेनर की शेप ले लेते हैं जिसमें हम वाटर पोर करते हैं। और डेफिनेट वॉल्यूम का मतलब होता है बेटा, दे डेफिनेट वॉल्यूम मीन्स, ओके इसको बहुत अच्छे से समझना, लाइक लाइक इन अ ग्लास देर इज़ अ 500 ml milk, like I have taken example earlier, like you can also do like in a glass there is a 500 ml milk, okay, if you will pour that milk in a bowl, okay chalo you have poured, you have done. Now again you will pour the same water from the bowl to that glass. You will see that again the glass is full of milk. सो यू टेल मी, क्या गिलास में वाटर क्या कम हो गया? नो, द वाटर इज सेम इन द क्लास इन द ग्लास बिफोर वी हैव पोर्ड इनटू द बोल, राइट। तो बेटा वाटर जो है वो अपने आप कम नहीं होता है, इसीलिए बोला गया डेफिनेट वॉल्यूम। ऑफ कोर्स अगर आप उसमें से थोड़ा सा ड्रिंक कर लोगे और इफ इट विल फॉल समवेयर, तभी वो कम होता है, अदरवाइज वाटर की क्या होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है, ठीक है। यस, डेफिनेट वॉल्यूम मीन्स वो अपने आप कम नहीं होता, अपने आप रिड्यूस नहीं होता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट बेटा स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ये देखो, ऑब्जर्व करो अच्छे से, देखो, सी व्हाट द किड इज़ डूइंग, ही इज़ ब्लोइंग अ बैलून। How you blow a balloon? Simply you pop up the air into the balloon. अब एयर से क्या जा रहा है अंदर, गैस जा रही है, ऑक्सीजन जा रही है ना। अब बैलून तभी तो ब्लो करता है। एंड सी what the lady is also doing. Lady is using some DO on her body, है ना। सो बेसिकली बेटा ये क्या है, ये गैस होती हैं। अब नेक्स्ट इज गैस, हमने स्टडी किया है ना गैस, लाइक इन द किचन देयर इज़ अ सिलेंडर एंड सिलेंडर स्टोव, राइट, एंड द गैस इज रीचिंग फ्रॉम द सिलेंडर टू गैस स्टोव। तो वो क्या है, गैस ही तो जा रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, इसके भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब गैसेस के कुछ एग्जांपल होते हैं, आपने पढ़ा है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, like our body absorb oxygen and releases carbon dioxide. Steam वो होता है, like when you fall sick, you are suffering from the cold and cough, then doctor suggest ना कि बच्चे को स्टीम दो। वाटर को बॉयल करने से जो एयर ऊपर जाती है उसको स्टीम बोलते हैं। लाइक मम्मा इज़ मेकिंग अ टी, मम्मा इज़ मेकिंग टी, तो जब वाटर बॉयल होता है तो वो बुलबुले ऊपर आते हैं, तो वो बेटा एयर होती है, उसको स्टीम बोलते हैं, ठीक है। स्मोक होता है, यस, स्मोक ऑल्सो वी नो। हीलियम बेटा होता है गैस, इट इज़ ऑल्सो अ गैस। अब गैस की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। गैस हैव नो डेफिनेट शेप। नाउ व्हाट डज इट मीन? गैस की बिल्कुल भी शेप नहीं होती है, बिकॉज इट स्प्रेड, वो तो स्प्रेड करती है ना। लाइक समवेयर यू फाइंड देर इज़ अ बर्निंग ऑफ गार्बेज हैपनिंग, ओके, आपको फील हो रहा है कि लाइक सो स्मेल इज़ देयर, वी आर अनेबल टू ब्रीथ, बिकॉज जब बर्निंग ऑफ गैसेस से जो भी स्मोक आता है वो स्प्रेड हो जाता है। ऐसा तो नहीं है कि उसकी स्पेशल जगह है, नहीं, वो स्प्रेड होता है। like in the kitchen also, sometimes we feel mama there is a smell of gas, maybe gas is leaking, तो वो पूरे घर में बेटा फैल जाती है, ठीक है। अब गैस की डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती। अब ऐसा तो नहीं है अगर एक गिलास में गैस है तो वो एक गिलास में रहती है, नहीं, इनफैक्ट वो स्प्रेड होती है, इसीलिए बोलते हैं नो डेफिनेट वॉल्यूम। गैस की डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती है। और थर्ड में यही एक्सप्लेन किया हुआ है, दे टेक अप ऑल द स्पेस अवेलेबल इन द कंटेनर। यानी कि अगर सपोज लेट मी टेक एन एग्जांपल, लाइक यू आर गोइंग टू अ फंक्शन एंड यू आर यूजिंग सम डीओ और परफ्यूम। अब भाई बताया ना ये एक गैस होता है, और आपको फील होता है कि इन द होल रूम द वेरी वेरी स्वीट स्मेल इज़ देयर, है ना, बहुत अच्छी सी स्मेल आ रही होती है, तो वो क्या हो गया, वो रूम में स्प्रेड हो गया, राइट। और समटाइम्स वी फील फॉर द होल डे फ्रॉम आवर क्लोथ्स ऑल्सो, लाइक सी माई क्लोथ्स आर स्मेलिंग वेरी गुड, राइट, क्योंकि वो क्या करते हैं, पूरा स्पेस ले लेते हैं।
एंड दे फ्लो ईजली, यस। अब जो गैसेस होते हैं वो बहुत जल्दी फ्लो कर जाते हैं। इनफैक्ट लिक्विड्स ऑल्सो, बेटा लिक्विड्स में हमने ये पॉइंट नहीं किया, लिक्विड्स भी जो होते हैं वो भी फ्लो बहुत करते हैं। जैसे एक गिलास में पानी है, फ्लो कर जाता है, तो देखोगे पूरा फ्लोर वेट हो जाता है। ठीक है बेटा, तो ये बहुत अच्छे से आप स्टडी कर सकते हैं अबाउट दीज ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ। So students, this is all for the day. Now you have to thoroughly read the chapter till the properties. Okay, properties आपको समझाई हुई हैं, आपने properties तक बहुत अच्छे से स्टडी करना है. Let me show you the book images from till where you have to read. ये see students, you can see that property of solids you can read easily, property of liquids also you can read easily. Okay students, and yes, of course you can do the you can read about the properties of in fact all the matter. ठीक है, okay students, so bye bye, take care. You have to read the pages that I will send you in the homework, and do the underlining also, that also I will send you. Bye bye, take care students.